Yes, it is known as vector product, also known as cross product. Also known as cross product. Dear friend, need to understand one thing very clearly. That is, here again two vectors multiply. Here again two vectors multiply. So cross product is computed for two vectors A and B like dot product, but difference lies for cross product we have two vectors again A and B, but the difference lies is that A cross B is going to be A cross B is going to be a vector quantity. Now you understand the name, why we call it cross product, because we use the symbol cross, right? Unlike in the previous page, for the dot product we use the symbol dot. Here in this case we use the symbol cross. That's why known as cross product or vector. Why it is called vector product? Because it is a vector quantity. How do I compute the cross product of two given vectors? As usual, first we'll learn it graphically, then we'll develop the component method, that is based upon the component. So let me take two vectors to begin with. Let's take vector A and vector B. These are two vectors and I want to compute the cross product of them. Dear friends, since the answer is vector quantity, so that's why let me write this here. So we have two obligations, and two obligations are we have to learn the magnitude and we have to learn the direction. Both. तो आपको हमने एक बात बताया था कि कोई वेक्टर, लेट्स से कोई वेक्टर A है, तो वेक्टर A कैन बी रिटन एज A का मैग्नीट्यूड इनटू A कैप, कैन बी और नॉट. ये मैग्नीट्यूड की केयर कर लेता है और ये सेंस ऑफ डायरेक्शन की केयर कर लेता है. यू नो दैट वेरी वेल. आई टोल्ड यू लॉन्ग टाइम बैक कि वेक्टर A कैन ऑलवेज बी रिटन एज इट्स मैग्नीट्यूड A. लेट्स से ये 10 यूनिट्स का था तो 10 नंबर 10, and then of course there is a cap unit vector that is attached in the direction of A cap. तो ये क्या है कि this is another way of writing any vector where we have written two information separately, that is magnitude and direction. So this takes care of magnitude and this takes care of direction. तो we are gonna do the same thing. पहले मैं magnitude सीख लूंगा, फिर मैं डायरेक्शन के लिए एक यूनिट वेक्टर डेवलप करूंगा. कौन सा जो डायरेक्शन होगा A क्रॉस B का, उसी डायरेक्शन में एक वेक्टर लिख देंगे. Having said that, so how to talk about the magnitude? Magnitude is very simple. It is defined as, if I draw this in the common tail, you recall that common tail में हम लोग किसके लिए ड्रॉ करते थे? Addition के लिए. We used to do this or not? We used to do that for addition, didn't we? We used to draw the vectors in the common tail. तो मैंने जो दो वेक्टर दिए उनको पहले कॉमन टेल में ड्रॉ किया. Then again I complete the parallelogram. Looks like that I am going to add them, but I am not. Looks like that I am going to add them, but I am not. Well, I complete the parallelogram. Thus, I have completed the parallelogram. Now, the magnitude of the cross product. The magnitude of the cross product, can write it as modulus, comfortable with the symbol, modulus A cross B. Modulus A cross B means magnitude. तो किसी के आगे मॉडुलस लगा देना मतलब केवल मैग्नीट्यूड. रिकॉल दैट, पहले भी हम लोग ये बात करते थे जब हम लोगों ने वेक्टर डिफरेंस सीखा था तो लिखा था A माइनस बी, उसका मैग्नीट्यूड की जब बात की थी, जब फॉर्मूला डेवलप किया था, कौन वाला याद है? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा. डिड वी और नॉट?
डिड वी और नॉट, वॉज इट द मैग्नीट्यूड और नॉट? तो किसी भी वेक्टर के क्रॉस अगर मॉडुलस लगाते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस होता है, तो दैट इज द मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज गोना बी बहुत सिंपल, इट इज द एरिया ऑफ, it is area of parallelogram it is area of the parallelogram which we have made over there. How do I compute the area? You know that very well. The area of any parallelogram can be talked about if there is a parallelogram, you know. You've done this in geometry, I guess. What is the area of a parallelogram? एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज, अगर किसी पैरेललोग्राम के एरिया की बात हम लोग करते हैं तो कहते हैं एनी साइड मल्टीप्लाइड बाय इट्स सेपरेशन। इट्स सेपरेशन फ्रॉम द पैरेलल साइड। मतलब कोई भी एक साइड उठा लीजिए आप, जैसे आपने मान लीजिए ये साइड उठाया, अब इससे मतलब नहीं है, अब किससे मतलब है? इसकी लेंथ को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसकी लेंथ को इसके पैरेलल साइड जो है, इसके पैरेलल ये है, तो इसकी परपेंडिकुलर सेपरेशन कितनी है, दोनों के बीच में कितनी परपेंडिकुलर सेपरेशन है? परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये दोनों के बीच में सेपरेशन है कि नहीं? सेपरेशन को तो आप ये भी कह सकते हैं सर ये भी सेपरेशन है ना, ये सेपरेशन नहीं मानी जाएगी। सेपरेशन का मतलब परपेंडिकुलर सेपरेशन, श्योर और नॉट? तो दैट मीन्स मैं इस लेंथ को अगर इस ब्लू लेंथ में मल्टीप्लाई कर दूं तो एरिया आ जाएगा। तो अगर ये टोटल लेंथ लेट से p है, ये टोटल लेंथ p है, ये पूरी लेंथ p है, ये q है और ये एंगल थीटा है, तो क्या होगा ये परपेंडिकुलर सेपरेशन? दिस कैन बी गॉट वेरी कंफर्टेबली, दिस कैन बी गॉट वेरी कंफर्टेबली, दैट इज, इट इज सो सिंपल। यही लेंथ ये भी है, तो इस छोटे से राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं इसको बात करूं, ये परपेंडिकुलर की बात करूं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट? तो दैट इज गोना परपेंडिकुलर तुमको निकालना है, तो इसको परपेंडिकुलर ही लिखा रहने दिया। हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा? हाइपोटेन्यूज कितना है? क्यू 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 क्यू, आई हैव रिटन क्यू, थोड़ी राइटिंग गंदी है तो बेयर विद दैट। क्यू, पी ये लेंथ है पैरेललोग्राम की, क्यू ये लेंथ है ना, तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर? द परपेंडिकुलर इज गोना बी, बोलिए, क्यू साइन थीटा और नॉट, राइट? तो इसका एरिया कितना हो गया? इसका एरिया हो गया P पूरी लंबाई इसकी मल्टीप्लाइड बाय Q साइन थीटा, तो दैट इज पी क्यू साइन थीटा। श्योर? कोई डाउट किसी को? राइट, व्हाट आई हैव रिटन हियर, राइटिंग थोड़ी फिल्दी हो गई थी, फिर से लिख देता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज परपेंडिकुलर अपॉन Q। ये राइट एंगल ट्रायंगल में, किस राइट एंगल ट्रायंगल में? इस राइट एंगल ट्रायंगल में। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? तो परपेंडिकुलर मेरा क्यू साइन थीटा आ गया कि नहीं आ गया? क्या ये क्यू साइन थीटा आ गया कि नहीं आ गया? तो ये लेंथ पूरी पी है, श्योर और नॉट? अरे भाई ये लेंथ पूरी कितनी है? ये लेंथ पूरी मेरी पी है। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? ये लेंथ पूरी मेरी पी है, ये क्यू साइन थीटा, तो दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट, एनी साइड मल्टीप्लाइड बाय इट्स सेपरेशन फ्रॉम द पैरेलल साइड। तो अगर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स पी एंड क्यू हैं और उनके बीच में एंगल थीटा है, तो एरिया इज पी क्यू साइन थीटा। तो लेट मी कम बैक एंड राइट इट ओवर हियर। तो व्हाट इज दैट एरिया गोना बी हियर? एरिया इज गोना बी, कैन यू सी दैट एरिया? अगर दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो विल द एरिया बी ए बी साइन थीटा? तो ए बी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड। तो इट इज वेरी ब्यूटिफुली डिफाइंड। आई मीन लेट मी हैच इट, for the sake of your अंडरस्टैंडिंग, जिससे कि आपको और समझ में आए कि किस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। आई एम रेफरिंग टू एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम विच वॉज कंस्ट्रक्टेड एज ए एंड बी टू एडजेसेंट साइड्स। ये
this area I'm referring to. Sure, this area I'm referring to, and this angle I've said as theta. This angle is theta, you know. Now, is it AB sin theta or not? So see how it is conceived. It is conceived in a very similar manner. Dot product is AB into cos theta, A into B into cos of angle between them, and cross product is A into B into sine of angle between them. But this is not the complete answer for my A cross B. ये मेरा complete answer नहीं है. Complete answer के लिए मेरे को एक यूनिट वेक्टर इसके आगे और लगाना पड़ेगा. इसके आगे अगर मेरे को कंप्लीट आंसर देना है तो इसके आगे मेरे को एक यूनिट वेक्टर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कुछ यहाँ पे कुछ भी, लेट्स कॉल इट एन कैप. तब ये मैग्नीट्यूड की केयर कर लेगा और ये डायरेक्शन की केयर कर लेगा. समझ में आ रहा है मेरी पूरी बात? तो ये केवल अभी तक मैग्नीट्यूड मैंने लिखा है. अब डायरेक्शन के लिए मेरे को यूनिट वेक्टर एक डेवलप करना पड़ेगा. इसके लिए आपको मेरे फिंगर्स की तरफ देखना पड़ेगा. और मैं कैसे, मतलब लाइक जब मैं व्हेन आई विल पब्लिश इट ऑन द यूट्यूब, then of course this facility would not be there. There are moments when the live class becomes very important as compared to any recorded class, because there are so many things that you can be told only in the physical presence, you know. देखिए बेटा, A क्रॉस B की डायरेक्शन क्या होगी? जो A और B जो मेरा प्लेन बना रहा है, प्लेन, इसको एक प्लेन मानिए. तो इस प्लेन से, कैन यू सी माई कैमरा, इस प्लेन से बाहर आता हुआ एक वेक्टर परपेंडिकुलर मानेंगे, बाहर आता हुआ, परपेंडिकुलर बाहर आता हुआ. से यस यू हैव अंडरस्टूड दैट. इस प्लेन से बाहर आता हुआ. से यस यू हैव अंडरस्टूड दैट, राइट. जैसे इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल जो है वो आपके रोड में बिल्कुल परपेंडिकुलर निकलता हुआ होता है कि नहीं होता है? बताइए. राइट. ऑब्लिक होता है तो खतरा लगता है कि नहीं, अरे गिर पड़ेगा, डर लगता है उसके अगल बगल से जाने में. अगर थोड़ा सा तिरछा होता है तो डर लगना शुरू हो जाता है. मानते हैं कि नहीं ना? तो जैसे रोड से इलेक्ट्रिक पोल निकल के आ रहा है, वैसे आप इस ए बी के प्लेन से बाहर निकलता हुआ एक वेक्टर सोचिए, यूनिट लेंथ का. आप सोच पा रहे हैं? आप सोच पा रहे हैं? एक यूनिट ना, ये जो ए बी का प्लेन है, ये जो हमारा प्लेन ऑफ ड्राइंग है, जो आप जो सेलफोन में या आप लैपटॉप में जिसमें क्लास अटेंड कर रहे हैं, उसमें ए और बी ड्रॉन है. अग्री और नॉट? तो उससे बाहर निकलता हुआ परपेंडिकुलर, उसको रोड मानिए, तो उससे बाहर इलेक्ट्रिक पोल जैसा बाहर निकलता हुआ एक यूनिट वेक्टर सोचिए. सोचा मन में आपने? अच्छा, अब मैं ये बताऊंगा, उसके दो ऑप्शन है. कौन ऑप्शन में लूं? इससे ऐसे निकलता हुआ लूं कि ऐसे निकलता हुआ लूं? मतलब बाहर आता हुआ लूं कि अंदर जाता हुआ लूं? आप समझ रहे हैं ना कि अच्छा बात करते हैं कि उसी रोड में इलेक्ट्रिक पोल बाहर आता हुआ होता है, ठीक है ना. और उसी रोड में अगर आपके घर में ट्यूबवेल देखा हो, आपने ट्यूबवेल कहीं देखा हो, तो उसका पाइप नीचे जाता हुआ होता है कि नहीं होता है, परपेंडिकुलर? समझ रहे हैं? तो दो ऑप्शन हो गए कि नहीं, कि बाहर आता हुआ लूं कि अंदर जाता हुआ लूं. आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट? Aren't there two options कि रोड से परपेंडिकुलर बाहर आता हुआ कि रोड से परपेंडिकुलर अंदर जाता हुआ? तो ये डिसाइड करने के लिए आई यूज राइट हैंड रूल. वी यूज राइट हैंड रूल. इट इज राइट हैंड रूल विच हैज बीन सजेस्टेड. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. ये सारी बातें केवल वर्ड्स में ही समझी जा सकती. मैं यहाँ क्या लिखूं? आई कांट शो दैट यूनिट वेक्टर बिकॉज इट इज इन द प्लेन ऑफ ड्राइंग. मेरे पास 2 डायमेंशनल प्लेन है, हम सभी के पास 2 डायमेंशनल प्लेन है जिसमें हम लोग लिख रहे हैं, देख रहे हैं स्क्रीन. तो दैट्स वाई जो चीज बाहर आ रही है उसको कैसे दिखाया जाए, इसीलिए आपको समझना पड़ेगा मेरी बात को. तो राइट हैंड रूल यूज करते हैं. अब सवाल ये उठता है कि ये इलेक्ट्रिक पोल जैसा है कि ट्यूबवेल के पाइप जैसा यूनिट वेक्टर है? मतलब बाहर आता हुआ है कि अंदर जाता हुआ है? इट इज कमिंग आउट. आप देखिए इस कैमरे की तरफ, इट इज कमिंग आउट और इट इज गोइंग डाउन. आप देख पा रहे हैं कि नहीं? देख पा रहे हैं? इट इज कमिंग आउट और इट इज गोइंग डाउन. अग्री और नॉट? तो अगर आपको ये डिसाइड करना तो इसके लिए आपको राइट हैंड फिंगर्स को यूज करना पड़ेगा. राइट हैंड की 4 फिंगर्स को आप, जिससे पाम बनती है, थंब को उठा लीजिए, थंब को उसके परपेंडिकुलर कर लीजिए, थंब को चारों फिंगर से परपेंडिकुलर कर लीजिए, पाम के ही प्लेन में परपेंडिकुलर कर लीजिए. अग्री? अब राइट हैंड की इन 4 फिंगर्स को आप कर्ल करिए, मोड़िए. किधर?
पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ, दूसरे से पहले की तरफ नहीं, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ। आपका ए और बी है, अब मैं यहाँ पे कैसे दिखाऊं, राइट, ए की तरफ मैंने ऐसा, ए की तरफ मान लीजिए ए और बी ये है, ए की तरफ मैंने पॉइंट किया इन 4 फिंगर को, बी की तरफ कर्ल किया, बी की तरफ कर्ल किया, बी की तरफ मोड़ा, तो थंब की जो डायरेक्शन होगी, थंब की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ऑफ एन कैप होगी, थंब की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ऑफ एन कैप होगी। कुड यू ऑल अप्रिशिएट दैट? थंब की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ऑफ एन कैप होगी। कुड यू ऑल अप्रिशिएट दिस? अंडरस्टूड इट? रियलाइज्ड इट? ऑल ऑफ यू? ए की तरफ आप फिंगर पॉइंट करिए, 4 फिंगर्स, कर्ल करिए बी की तरफ, श्योर और नॉट? बी की तरफ कर्ल करिए, थंब उसके परपेंडिकुलर निकलेगा, विल इट कम आउट और नॉट? So that is the direction of n cap. तो my n cap would be something like that, you know. कैसा होगा, यहां से आप 3D व्यू बनाए तो ऐसा कुछ निकलता हुआ होगा n cap, n cap इस प्लेन से निकलता हुआ होगा n cap. Could you all appreciate that? अब ये 3D फिगर समझ में नहीं आएगी आपको, इसलिए मैं यहां बनाना नहीं चाहता n cap. ये डायरेक्शन होगी क्रॉस प्रोडक्ट की जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ए के परपेंडिकुलर बी के परपेंडिकुलर नहीं, प्लेन के पूरे परपेंडिकुलर होगी, जैसे रोड के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक पोल निकलता है, श्योर और नॉट? सो this into n cap, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया. Now if you want to write a cross b complete answer, तो you have to take care of the magnitude as well as the direction. तो मैग्नीट्यूड की केयर करेगा जो हमने पहले बात किया है ए बी साइन थीटा, श्योर, और डायरेक्शन की केयर करेगा एन कैप. और व्हाट इज एन कैप आई कांट शो हियर, आई कैन ओनली let you feel that. Had you been there in the class, I would have shown with the wooden model that I carry to the class when I take vectors or any other graphical topics. Right? You have to perceive that. I have spoken enough for this. I have spent 5 minutes on this, I guess. That is, either it can be electric pole or it can be a tube bell pipe. तो इन दोनों में क्या ऑप्शन होगा? इन दोनों में से ये ऑप्शन होगा कि जब आप राइट हैंड की, लेफ्ट हैंड की नहीं बेटा, ध्यान रखिएगा, राइट हैंड की फिंगर, इन 4 फिंगर्स को, इन 4 फिंगर को कर्ल करिए ए से लेके बी की तरफ, और थंब की डायरेक्शन जो होगी वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी. कुड यू ऑल अप्रिशिएट दैट?
Can can we proceed now? When it is B cross A, when it is B cross A, B क्रॉस ए को देखिए क्या होगा, B क्रॉस ए देखिए, B क्रॉस ए आप फील कर पा रहे हैं, B क्रॉस ए करने में उल्टा होगा, A क्रॉस B करने में थंब ऊपर आएगा, B क्रॉस ए करने में थंब नीचे जाएगा कि नहीं करेगा, क्यों B से आप A की तरफ जाएंगे। और देखिए बहुत अच्छी बात है, राइट हैंड के फिंगर को आप पीछे कर्ल कर नहीं सकते, पीछे मोड़ सकते हैं क्या? आप पीछे मोड़ नहीं सकते, पीछे मोड़ेंगे तो आपकी हड्डियां टूट जाएंगी। गॉड ने आपको आगे मोड़ने के लिए बनाया फिंगर ना, लॉक हो जाती है पीछे, राइट। तो जब आप ए से बी तक कर्ल करेंगे, थंब की डायरेक्शन आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देगी। फर्स्ट से सेकंड वेक्टर, आइडिया इज दैट फर्स्ट से सेकंड, तो अगर बी आप पहले लिख रहे हैं तो बी से जाएंगे तब देखिए ट्यूबवेल हो जाएगा, ए से बी जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक पोल होगा। कुड यू अप्रिशिएट दैट? ओके, दैट्स वेरी गुड। इट इज सम इशू विच बॉदर्स मी, क्योंकि ग्राफिकल चीजों को ऐसे ऑनलाइन मीडियम से कैसे समझाया जाए। ओनली थिंग इज दैट आई कैन लेट यू परसीव थिंग्स, दैट्स ऑल। Okay, having understood that, now let me give me the synopsis of what we have discussed. Although it has been only 4-5 lines, but it deserves synopsis. एक summary छोटी सी कि unlike dot product, cross product has vector output. वहां पे स्केलर आउटपुट होता था, इसलिए हमको डायरेक्शन की ऑब्लिगेशन नहीं होती थी। यहां पे हमको डायरेक्शन भी जानना पड़ेगा। बात नंबर 1, somebody is trying to join or what? Okay, Pranam. So unlike dot product, it is a vector quantity, that's why we have the obligation to learn the direction also. Now magnitude is so symmetrical, dot product it was AB cos theta, so cross product it is coming out to be AB sin theta. It is so symmetrical, you know, cos की जगह sin आ गया, and what a beautiful thing. But since it requires direction also, that's why direction is a unit vector coming out of the plane of A and B or going down into the plane of A and B, depending upon which one is written earlier and which one is written later. This is what it is. So let me proceed further. Next, of course, in the line is properties of cross product, because we need to learn the properties. फर्स्ट इज लुक एट द ब्यूटी। अगर आप वापस जाइए और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देखिए तो वहां को पहला प्रॉपर्टी आपको क्या मिला था, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। दैट मीन्स आप लिखिए ए डॉट बी और बी डॉट ए डज नॉट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल। हियर इट इज नॉट गोइंग टू बी द केस, इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, it is not, with capital N I am writing, you know, notice that, not commutative. Not commutative. किस ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल मेक द डिफरेंस। दैट मीन्स ए क्रॉस बी is not equal to B cross A. In fact, अगर हम सही बात बोलें तो दे आर एग्जैक्टली अपोजिट, क्योंकि वो ये होगा अगर ट्यूब इलेक्ट्रिक पोल तो ये होगा ट्यूब वेल, तो हाउ कैन दे बी इक्वल? सेकेंड इज nevertheless dot product is distributive. Distributive law holds good. Meaning thereby कि A is cross multiplied
with B plus C, then it gets distributed A cross B plus A cross C. Sure? A cross B plus A cross C. Okay. Okay. The third is dot product of two parallel or oblique anti-parallel vector cross product, I'm so sorry. Cross product of two parallel oblique anti-parallel. What is parallel? जिनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो, राइट. व्हाट इज एंटी पैर? हाँ जी. या ऑफ कोर्स इट इज 0. वेरी गुड आंसर. पैरेलल वो जिनके बीच में एंगल 0, एंटी पैरेलल वो जिनके बीच में एंगल 180 डिग्री हो. तो ये दो वेक्टर पैरेलल हैं. मैं बना देता हूं. इज नल. बेटा वेक्टर क्वांटिटी के लिए 0 नहीं यूज करते, इसलिए हम नल बोलेंगे. इज नल. पैरेलल वेक्टर क्या होंगे? देखिए, ये ए है, ये बी है, ये दोनों पैरेलल हैं. आर इन दे पैरेलल? दोनों का डायरेक्शन एक है. ये ए और बी. अब ये देखिए एंटी पैरेलल देख लीजिए. ये ए है और ये बी है. ये सी है और ये डी है. ये एंटी पैरेलल हुए कि नहीं हुए? बोलिए. चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, दोनों ही केस में हमारा क्रॉस प्रोडक्ट 0. क्यों भाई? क्योंकि इसके बीच में एंगल कितना होगा पैरेलल के केस में? पैरेलल केस में एंगल विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, और एंटी पैरेलल केस में एंगल वुड बी, बोलिए, 180 डिग्री. तो आप जानते हैं कि साइन 0 भी 0 होता है. और सप्लीमेंट्री एंगल का साइन आपको बताया ना बहुत पहले कि जो साइन 180 भी 0 होता है. 0 का सप्लीमेंट्री 180 की नहीं. और जो किसी एंगल का साइन होता है वही उसके सप्लीमेंट्री एंगल का भी साइन होता है. जो साइन 60 है वही साइन 120 है, जो साइन 30 है वही साइन 150 है. तो सप्लीमेंट्री एंगल के साइन सेम होते हैं. साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू. श्योर और नॉट? ओके. हैविंग सेड दैट, राइट नाउ इसकी एक कॉरोलरी बात कर लेते हैं. यू नो व्हाट इज अ कॉरोलरी? Corollary is a small result derived from any theorem. तो इस थर्ड पॉइंट की ही एक कॉरोलरी बात कर लें. कॉरोलरी, COR लिखते हैं पर पूरा वर्ड होता है कॉरोलरी. इसकी एक कॉरोलरी लिख दें. कॉरोलरी इसकी ये होगी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर with itself. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद itself is null. हाँ भाई हाँ. एक वेक्टर का अपने साथ एंगल कितना होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? बोलिए हाँ या ना. अगर ये वेक्टर ए है, लेट से, अगर ये वेक्टर ए है, तो अगर मैंने एक बार ए और ड्रॉ किया, ये दोनों ही ए है, यू नो, ये भी ए है, ये भी ए है. तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0. तो एंगल 0 होगा तो 0 होगा कि नहीं होगा? तो दैट वाई आई कैन से दैट कॉर्नरी का मतलब ये निकला ए क्रॉस ए, कोई वेक्टर हो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू नल. 0 नहीं लिखेंगे बेटा, नल लिखेंगे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा. एरो जरूर लगाइएगा ऊपर, क्योंकि वेक्टर आंसर तो 0 भी हो तब भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगा. श्योर?
तो ये इसकी थर्ड पॉइंट की कॉरोलरी होगी। अब फोर्थ पॉइंट इज fourth property is cross product magnitude of two orthogonal vectors is product of their magnitudes. That is, अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है, if there are two vectors which are orthogonal, you know, that is a right angle. So what they are saying is कि जो इनका मैग्नीट्यूड होगा क्रॉस प्रोडक्ट का वो होगा a इंटू बी इंटू साइन 90 डिग्री, बिकॉज एंगल 90 होगा दोनों बीच में ऑर्थोगोनल होने के कारण। साइन 90 इज इक्वल टू 1, that's why it is AB. This is what I meant by writing this. That is magnitude of the cross product is product of their magnitude. Sure? Now, fifth I want to take as, you know what? The fifth one that I want to take as आई कैप, जे कैप, के कैप के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में? As I showed you in the dot product also, if you scroll down over here and see that, aren't there nine different possibilities or not? 9 different possibilities. यहाँ पे भी 9 different possibility होगी। क्या क्या होगी बेटा? तो आइए उनको एक्सप्लोर करें। हाँ बताइए। एसोसिएटिविटी आपको बताना नहीं चाहते हैं हम डेलिबरेटली, बिकॉज इट इज नोन एज, आइए चलिए आपने बात की है तो बता दें। बहुत पहले आपको बताया था, हमने नहीं फॉलो करता, आइए आप पूछने के लिए बता देता हूँ। देखिए एसोसिएटिविटी तब बात होगी जैसे हमने बात किया था ए प्लस बी प्लस सी, जब दो से ज्यादा वेक्टर होंगे तब आप एसोसिएटिविटी चेक करेंगे भाई ये और ये दोनों सेम है कि नहीं। ना दो के लिए तो जरूरत नहीं पड़ती ना, दो के लिए जरूरत पड़ती थी, दो से ज्यादा जब होते तब जरूरत पड़ती। तो अब जब आप क्रॉस की बात करेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की बात करेंगे आप, तब आपको जरूरत पड़ेगी एसोसिएटिविटी की कि क्या ये आंसर और ये आंसर ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो आंसर इज नो, दे आर नॉट, नो दे आर नॉट। और ये कहलाता है वीटीपी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आप मैथ्स में पढ़ते हैं, जब आप 12th में मैथ्स में वेक्टर करते हैं लेटर पार्ट में, तब आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ते हैं। फिजिक्स में वीटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, नन ऑफ द टॉपिक रिक्वायर्ड ट्रिपल प्रोडक्ट, यू नो, एक्सेप्ट हाँ कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है, पर आप उस तरह से पढ़ते नहीं है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। श्योर और नॉट। तो वीटीपी में जब बात करते हैं इसकी, तो ये एसोसिएटिव नहीं होते हैं, इट इज नॉट एसोसिएटिव, हालांकि आप 12th की मैथ्स में ही सीखेंगे। ठीक है, इज योर क्वेरी सेटिस्फाइड? राइट। दो चीजें पढ़ेंगे मैथ्स में बेटा, इसके अलावा जितना वेक्टर हम लोगों ने पढ़ा है उसके अलावा दो चीज मैथ्स में और पढ़ना होता है, एक वीटीपी और एक उसके पहले एसटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, और जब यहाँ पे भी क्रॉस लग जाता है तो ये वीटीपी हो जाता है, ये
STP है और VTP है, श्योर और नॉट? तो STP VTP और एडिशनल टॉपिक हो जाते हैं मैथ्स में, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट फॉर द पर्पज ऑफ फिजिक्स. Okay, now fifth, how many possible combination of multiplication that you can get? Right, 9. You have seen that here. So the heading I will put as cross product of unit orthogonal vectors. Cross product of unit orthogonal वेक्टर. व्हेन यू से यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर तो तुरंत आपका दिमाग किधर जाना चाहिए? आई कैप, जे कैप, के कैप. आई कैप, जे कैप, के कैप, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग, एक जेड एक्सिस के लॉन्ग और यूनिट मैग्नीट्यूड. ओके, तो हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल? हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल? यू नो व्हाट? आई कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस के कैप. श्योर? जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप. श्योर? के कैप क्रॉस के कैप. नाउ तीन तो तुरंत नल हो गए भाई, तीन तुरंत नल हो गए. क्यों भाई? ये कॉरोलरी देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज नल. श्योर? हाँ जी, दिख रहा है आपको? तो इसलिए तीन नल होगा. आइए देखें कौन तीन नल, और आइए देखें कौन तीन नल होगा. ये नल हो गया, ये नल हो गया, ये नल हो गया. नाउ सिक्स आर रिमेनिंग एंड दे विल सर्वाइव, दे विल सर्वाइव. डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की डेस्टिनीज बिल्कुल अपोजिट है. वहां पे आप देखते हैं क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में तो यही तीन सर्वाइव किए थे, ये और यही सर्वाइव किया था और बाकी सब जीरो हुए थे. यहाँ पे उल्टा है, ये तीनों जो है वो जीरो हो गए हैं और बाकी सिक्स सर्वाइव करेंगे. वो साइन थीटा और कॉस थीटा का खेल है बेटा. राइट? ओके, नाउ why don't you try it out and tell me what is I cross J? आप एक्स वाई जेड एक्सिस बनाइए अपने हाथों के सामने, राइट हैंड से बनाइएगा, राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से नहीं. एक्स वाई जेड एक्सिस बनाइए, एक्स वाई जेड एक्सिस बनाइए और बताइए मेरे को व्हाट इज गोना बी आई कैप क्रॉस जे कैप. हाँ जी, आई आई जेड. व्हाट इज आई जेड? आई जे. नहीं बेटा, आप क्या बात कर रहे हैं? इट इज थॉरली रॉन्ग. और ट्राई करिए कोई. आई, व्हाट इज आई कैप क्रॉस जे कैप? You all try out, beta. I mean, you've seen what is cross product. You have seen pole and tube-well and everything. We have gone through a long, elaborate discussion. Now you need to tell me what is I cross J. In fact, आप all six बताइए मेरे को. All six मेरे को आप बताइए जो बचे हुए हैं क्या होंगे. Any one of you can try out. And गलत बोलना कोई पाप नहीं है बेटा. You just give an answer like he gave. Right? You can just give a try to it, you know.
बताइए बेटा, आप अपनी फिंगर्स को कर्ल वर्ल करके जैसे भी देखना चाहें देखिए, पर मेरे को बताइए, इन 6 के आंसर दीजिए आपको। लेट मी जस्ट, लेट्स टेक दिस स्मॉल क्विज, यू नो, कि एक छोटी सी क्विज दिया हमने, आप आंसर करिए मेरे को। इफ नथिंग इज देयर विद यू, एटलीस्ट 3 फिंगर्स आर देयर विद यू, तो आप देखिए ना, इसको कर्ल करके एक्स वाई जेड बना के आप देखिए क्या होगा। देखिए बेटा, राइट हैंड के, लेफ्ट हैंड के नहीं, राइट हैंड के अगर थंब को अगर एक्स एक्सिस का आएंगे तो फर्स्ट फिंगर वाई एक्सिस होगा, ये जेड एक्सिस होगा। लेफ्ट हैंड का नहीं, लेफ्ट हैंड का उल्टा हो जाएगा राइट हैंड का। और इस बात को ध्यान दीजिए बेटा, ये जब आप बोलेंगे, सॉरी, ये जब आप इसका आंसर बोलेंगे क्या होगा, तो इसका इसका मैग्नीट्यूड भी बताएंगे और इसका डायरेक्शन भी बताएंगे, इसका डायरेक्शन भी बताएंगे, दोनों चीज बताएंगे आप मेरे को, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यस, एनीबडी, व्हाट इज आई क्रॉस, I cap cross J cap is K cap. इज के कैप, इज के कैप Yes, sir. इज ब्यूटिफुली करेक्ट आंसर। मैं समझाता हूँ कैसे, आई कैप क्रॉस के कैप बताइए। मैं समझाऊंगा सबको, डोंट बॉदर। व्हाट इज आई कैप क्रॉस के कैप? Who was joining in between? Okay. Yes. What is I cap cross K cap? Why do you take so much of time to work it out? Sir, Ah, the answer is I I cap into K cap. I into K I into I into J cap. no. Sir, K cap. No, not at all. मैं इसकी बात पूछ रहा हूँ, आई कैप क्रॉस के कैप कैसे हो सकता है बेटा? Sir, J cap. हु सेड जे कैप? Sir, Ashi. नो बेटा,
not j cap. Now let me write the answer. Minus j cap. I'll tell you. अब मैं बाकी लिख देता हूं, सब फिर समझाता हूं. j क्रॉस i is gonna be minus k cap. j क्रॉस k is gonna be I cap. K cross I is gonna be j cap. And k cross j is gonna be minus I cap. आइए मैं आपको पूरी बात समझा. बहुत आसान था बेटा, यू कुड हैव वर्कड इट आउट, पर कोई बात नहीं, आपने कोशिश की है, ये बहुत बड़ी बात है. देखिए बेटा, अच्छे से समझिए मेरी बात को. इतना करके हम लेक्चर फिनिश करेंगे फिर आज का, क्योंकि मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट करनी टाइम पे, राइट. आइए देखिए बेटा, आइए समझने की कोशिश करिए, फटाफट समझने की कोशिश करिए. देखिए बेटा, ये तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस हैं. पहली बात तो ये आप कंफ्यूज ना होइए कि ये त्रिज्या, ये परपेंडिकुलर, तीनों परपेंडिकुलर है. समझ में आ रहा है कि नहीं? 3D फिगर ऐसे ही बनती है. सबको समझ में आ रहा है? ये आई कैप है, ये जे कैप है, और ये क्या है बेटा बताइए? के कैप है. तीनों आपस में परपेंडिकुलर है. तो सबसे पहली बात तो ये है कि आई कैप क्रॉस जे, ये आई जे और के. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को बेटा, ध्यान सुनिएगा. आई एक्सपेक्टेड अ मच बेटर आंसर, बट समहाउ यू पीपल कुड कंट्रीब्यूट. कोई बात नहीं, यू आर लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम. आई रियलाइज दैट. ये तो बहुत ही आसान था, ये बहुत ही आसान था. क्यों? कि कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? अच्छा, सबसे पहली बात है ये देखिए आप, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखिए कि मल्टी मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर इज प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड. अगर दो 90 डिग्री वेक्टर हों तो उनका मैग्नीट्यूड जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड, वो दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है, a इंटू बी सिंपली, क्योंकि साइन 91 होता है. यहाँ पे सभी के सब 90 हैं, यहाँ सभी के सब 90 हैं, सभी के सब 90 है. आई और जे के बीच में 90, जे और के बीच में 90, के और आई के बीच में 90. तो सबसे पहली बात तो इन सब का मैग्नीट्यूड, इन सब का मैग्नीट्यूड, जो भी सर्वाइव कर रहे हैं, जो भी सर्वाइव कर रहे हैं, जो भी सर्वाइव कर रहे हैं, जो भी, सबका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1. मैग्नीट्यूड 1 होगा. मैग्नीट्यूड 1 होगा कि नहीं होगा? सबको समझ में आ गया? क्योंकि दे देमसेल्व्स आर यूनिट, और दोनों का मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 1 होगा कि नहीं होगा? समझ में आया कि नहीं आया सबको? पहली बात. दूसरी बात, आइए देखिए सबके लिए एन कैप क्या क्या होगा. अब देखिए आई क्रॉस जे. अब मैं हाथ रख के यहां पे कैसे दिखाऊं? आई से जे की तरफ आप फिंगर कर्ल करिए. आई, देखिए बेटा, ये देखिए, मैं हाथ को देखिए, आई से जे की तरफ, आई से जे की तरफ, आई से जे की तरफ मैंने कर्ल किया, तो क्या मेरा के की तरफ जा रही है, तम की नहीं जा रही है? बोलिए हाँ या ना. अब मैं क्या करूंगा कि कैसे समझाऊंगा? सामने तो बैठे नहीं हो तुम लोग बेटा, यू आर नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. तो दैट्स व्हाई आई कैन ओनली आस्क यू टू डू दैट. 3 एक्सिस एक्स वाई जेड ऐसे करिए आप, और उसके बाद ना 3 पेन पकड़ लीजिए. आप 3 पेन पकड़ लीजिए. आप आई से जे की तरफ कर्ल करेंगे तो के की तरफ थम जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलिए हाँ या ना बेटा. सर, हाँ बोलिए. सर, के कैप इज अपवर्ड और डाउनवर्ड? के कैप इज अपवर्ड भाई. राइट हैंड फिंगर में आप बनाइए ना, हमने कहा था राइट हैंड फिंगर. अगर थंब आपका एक्स एक्सिस है, फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर आपका वाई एक्सिस है, तो ये मिडिल फिंगर आपका जेड एक्सिस है. तो बताइए, कोई अपने राइट हैंड को, मेरा राइट हैंड तो फिंगर दिखाने में बिजी हो गया, सेकंड राइट हैंड तो मेरे पास है नहीं. अब आप कोई, मैं कहूं कि एक थंब से लेकर इंडेक्स फिंगर तक कर्ल करे, तो क्या थंब की डायरेक्शन उसकी मेरे मिडिल फिंगर की तरफ होगी कि नहीं होगी? डू दैट योरसेल्फ. ओके, आई क्रॉस जे ये समझा दिया हमने. दैट इज व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ ऑनलाइन क्लासेस. नाउ जे क्रॉस आई, जे से आई की तरफ जब मैं करूंगा तो क्या थंब माइनस के से उल्टा जाएगा कि नहीं? जेड एक्सिस से उल्टा जाएगा कि नहीं जाएगा? तो माइनस के होगा कि नहीं होगा? तो दैट्स व्हाई इट इज माइनस के. तो ये समझा दिया मैंने आपको, ये समझा दिया. श्योर. अब देखिए आई क्रॉस के, आई क्रॉस के जब जाएंगे तो क्या माइनस जे डायरेक्शन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? माइनस जे डायरेक्शन में. के क्रॉस आई करेंगे तो जे डायरेक्शन में जाएंगे कि नहीं करेंगे? जे के क्रॉस आई, के क्रॉस आई करेंगे तो जे डायरेक्शन में जाएंगे, वाई डायरेक्शन में जाएंगे. इन लाइक वाइज मैंने के क्रॉस जे करेंगे आप, के क्रॉस जे, तो वो एक्स एक्सिस के अपोजिट जाएंगे. दैट्स व्हाई माइनस दिस थिंग. सो दिस इज वेयर वी आर. यू कीप ट्राइंग इट. ओनली वे इज दैट 3 पेंसिल पकड़िए, एक्स वाई जेड कहिए उनको, राइट हैंड के फिंगर की तरह. देखिए राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम विद द एसआई रेशनलाइजेशन, यू नो, लेफ्ट हैंडेड छोड़ दीजिए.
तो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब जिसमें आप थंब को एक्स एक्सिस कह रहे हैं तो इंडेक्स फिंगर को वाई एक्सिस कह रहे हैं तो मिडिल फिंगर को जेड एक्सिस कह रहे हैं। ऐसे 3 पेंसिल पकड़िए, उनको आई कैप जे कैप के कैप कहिए और घुमा घुमा के देखिए अपने राइट हैंड को, देखिए क्या आता है। इन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड एक्सिस आता है कि अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ थर्ड एक्सिस आता है, राइट। सो राइट, so we'll continue in the next one from here onwards. So at 5 o'clock I'll pick up the maths class. Let me stop sharing the screen, right, so that I can directly talk to you. Okay, so I can directly talk to you now. Okay, and I am signing off. I'll publish it in the YouTube in the evening. Half an hour later at 5 o'clock I'll pick up maths lecture